Welcome, dear parents and students, to the thought-provoking, bound-strengthening and practical aspect sharing platform of Prabhat Kids School. In today's webinar, this is Farida Ali from Team Prabhat, addressing you all and taking few of your precious moments on behalf of Prabhat Parivar. To begin, let me update you all that Team Prabhat teachers have already started Phase 2 of online teaching session, and the highlight of this session are the video recorded lectures of the teachers. These teachers have recorded their own explanatory videos and uploaded them for the students' better understanding. Hats off and salute to each and every individual teacher of Team Prabhat, because हम सब जानते हैं कि एक वीडियो के रिकॉर्डिंग, एडिटिंग और अपलोडिंग में कितनी मेहनत लगती है. So once again, hats off and salute to the pains taken by all the teachers of Team Prabhat. अब चलते हैं एक ऐसे क्वेश्चन की ओर जिसने हम सभी के दिल और दिमाग में घर कर लिया है. Why recorded lectures? Why not live online sessions on various apps like Zoom, Google Meet, Teams and so on? So dear parents, let me tell you, हम प्रभात में हर एक बच्चे का ध्यान रखते हैं. अगर हम ऑनलाइन टीचिंग सेशंस ऑप्ट करते हैं तो हमारे काफ़ी सारे बच्चों को कनेक्टिविटी इशू और नेटवर्क प्रॉब्लम्स का सामना, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे बच्चे रूरल एरिया से भी है. दूसरा है सिबलिंग इशू. अगर एक परिवार से दो बच्चों का क्लास सेम टाइम पर है और उस वक्त घर में एक ही मोबाइल डिवाइस अवेलेबल है तो फिर उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. टेकिंग ऑल दिस पॉइंट्स इनटू कंसिडरेशन, द प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, द प्रॉब्लम्स, Team Prabhat, under the guidance of our Honorable Director, Dr. Gajanan Nare Sir, have opted for recorded lectures and WhatsApp session, so that if a child due to any unavoidable circumstances is unable to attend the class on that particular or specified time, he or she is not missing anything, but they can check the content out any time. लेकिन फिर भी we have started with live online teaching also, so as to enable the students to interact with the teacher on one-to-one basis and to enable the students to have the feel of the live classrooms. We have already started with live online teaching sessions through Zoom. Now it totally depends on you how you make use of this golden opportunity provided to you. Dear students, आपको अपने टीचर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स शांति से, आराम से, एकांत में अकेले बैठकर देखने हैं और समझने की कोशिश करना है. अगर वीडियो का कंटेंट आपको एक बार में समझ नहीं आता तो कोशिश करिए कि आप वो कंटेंट बार बार देखें और समझने की कोशिश करें. ऐसा ना हो कि आपके पेरेंट्स के ज़बरदस्ती करने पर, फोर्स करने पर आप वीडियो लेक्चर लेकर बैठे, इधर टीवी शुरू है या दूसरा और कोई डिस्टर्बेंस शुरू है और आप वीडियो लेक्चर देखे जा रहे हैं. माय डियर चिल्ड्रन, इफ़ यू आर डूइंग दिस, लेट मी टेल यू, यू आर मिसयूजिंग द अपॉर्चुनिटी गिवन बाय योर टीचर्स. यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू योर टीचर्स हार्ड वर्क एंड टू योर पेरेंट्स एडवाइस. पेरेंट्स को भी बच्चों की पढ़ाई के कांस्टेंट टच में रहना चाहिए, स्पेशली इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन, जबकि बच्चों को आपकी खास ज़रूरत है. ऑलवेज बी कनेक्टेड विद देयर स्टडीज़. पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट इन चाइल्ड स्टडीज़ इज़ मस्ट, ज़रूरी है. बट रिमेंबर, ओवर इन्वॉल्वमेंट कैन बी हज़ार्डस और डेंजरस. At Prabhat, we are trying our best to make all the educational facilities available to your doorstep through advanced softwares like NTAB, online
corrections, online test conductions, and so on. So dear children, it becomes your duty also to become user friendly with NTAP software. अगर आपको कोई technical problems होती है related to NTAP, please try to eradicate them. आपका NTAP का पासवर्ड कहीं लिख कर सेफली स्टोर करिए, so that in circumstances if you forget your NTAP password or you change your device, you can easily have access to your return and safely stored password. So please keep into mind all these things. अब चलते हैं कि प्रभात ने आपके लिए क्या क्या और फैसिलिटीज़ अवेलेबल करके दी है. सो लेट मी टेल यू, प्रभात हैज़ इंट्रोड्यूस्ड PRO, that is Public Relation Officer. You can contact this PRO and share any of your difficulties, whether academic, technical or any other school related difficulties with this PRO. ये PRO कंसर्न अथॉरिटी या टीचर से आपकी डिफ़िकल्टी शेयर करके आपको उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे. अगर प्रभात में आपका इतना ध्यान रखा जा रहा है तो डियर पेरेंट्स, आप भी हमें सहयोग करिए PRO फैसिलिटी का सही प्रयोग करके मीन्स कैसे? हर छोटी छोटी बात के लिए PRO को फ़ोन न लगाए. जो मुश्किलें खुद से सॉर्ट आउट हो सकती है, प्लीज़ उनका सल्यूशन खुद निकालने की कोशिश करिए. PRO को दिए गए समय जो कि है सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक वर्किंग डेज में ही कांटेक्ट करिए. प्लीज़ यूज़ द PRO facility provided to you and help us in enriching our services to your doorstep. PRO को आपको रिप्लाई करने में कुछ समय लग सकता है, so please don't panic. To panic will not get solution to anything, but it will only increase problems for you and for others. So be patient. PRO आपकी डिफ़िकल्टी का रिप्लाई आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे. सिर्फ आप थोड़ा सा पेशेंटली वेट करिए रिप्लाई आने तक. Now let's move on. See dear children, e-learning is all about self-learning. ऐसा ना हो कि आप बिना मन के पेरेंट्स के कहने पे या टीचर्स के कहने पे फोर्सफुली पढ़ने बैठ रहे हैं. No, if you are doing this, it won't be fruitful. Let me tell you, e-learning is totally about self-learning. Self-learning is important when it comes to e-learning. It should not be forceful learning. अब चलते हैं एक दूसरे प्रश्न की तरफ जिसने वापस हमारा काफ़ी सारा ध्यान आकर्षित किया हुआ है. दैट इज screen timing. In this modern day e-learning, the biggest question is screen timing and how to reduce it. So dear children, let me tell you, with proper time management and parents monitoring the kids, screen timing will help you to come out of this difficulty. अब dear parents, पहले before this pandemic, ये स्क्रीन का इस्तेमाल एंटरटेनमेंट के लिए होता था, टू सोशलाइज विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स थ्रू वेरियस सोशल नेटवर्क्स, टू वॉच मूवीज़, टू प्ले गेम्स. लेकिन अब बच्चों और पेरेंट्स को ये ध्यान में रखना है कि हम स्क्रीन टाइम का यूज़ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल यूज़ के लिए कर रहे हैं. अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आई स्ट्रेस भी नहीं होएगा या फिर कोई दूसरा हेल्थ हज़ार्ड का सामना भी नहीं करना पड़ेगा. सो डियर पेरेंट्स, प्लीज़ मॉनिटर द किड्स स्क्रीन टाइमिंग and the kids be careful about the fact of e-learning. अब dear students, we all know that procrastination is the theft of time. तो ऐसा मत करिए. जिस दिन जो सेशन में जो वीडियो बताया गया है, अपलोड किया गया है, जो टॉपिक के क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, वो आप पर्टिकुलरली उसी वक्त उसी दिन
on that particular day you should solve it. ऐसा मत करिए कि चलो आज नहीं कल कर लूँगा, कल नहीं परसों कर लूँगा. If you are doing this, dear students, you are only increasing your pile of work. At the end you will get frustrated because you are overloaded with work. So remember that procrastination is the theft of time. So कल करे सो आज, आज करे सो अभी. जिस दिन का काम है उसी दिन प्लीज़ आप कंप्लीट कर लिए. स्टूडेंट्स के लिए एक और हम्बल रिक्वेस्ट, whenever you are communicating with your teachers through NTAB or any other medium, please be careful about your language and about the way you communicate with your teachers, because dear students, they are your teachers and you must respect their dignity. So be very, very particular when you communicate with your teachers. One more thing, dear students, it's a humble request. Please don't share your NTAB password with anyone. डियर पेरेंट्स, आपको स्कूल से जो व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे जाते हैं उन्हें कृपया करके बड़े ध्यान से पढ़िए, क्योंकि उसमें हर बात एकदम डिटेल में बताई जाती है. इसीलिए कभी कभी ये मैसेजेस थोड़े लॉन्ग भी हो जाते हैं. तो ऐसा मत करिए कि शुरू की एक लाइन पढ़ी, बीच की एक लाइन पढ़ी और आखिरी की एक लाइन पढ़ ली. ऐसा करने से आप ही को कन्फ्यूजन हो सकता है और आप ही की प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज बढ़ सकती है. Dear parents, e-learning can be very enjoying if you take it, if you perceive it in a positive sense. It is high time that we stop nagging, we stop criticizing, we stop grumbling over the situation. Take the present situation as it is coming to you. Be thankful to the Almighty for whatever He is giving you, and see, it would really work miracles for you. So please do remember all the instructions and requests we have made to you through this video. Now, how can we stop grumbling and make e-learning enjoyable? For this, I would hand over the session to a dynamic personality of Prabhat Kids School, our child counselor, Dr. Pradeep Auchar, who will address you and will give you the ways to work out miracles to make e-learning enjoyable. This was all from Farida Ali. Thank you. Over to Pradeep sir. Good morning all of you. On behalf of Honorable Director Sir, Director Ma'am, Academic Director Ma'am, Principal Ma'am, and my dear students, once again we are together. आज बहुत दिनों बाद हम एक दूसरे के साथ रूबरू हो रहे हैं. सभी पेरेंट्स को मेरा नमस्ते और मेरे स्टूडेंट्स को बहुत सारा प्यार. बच्चों, आज हम सब साथ हैं इस सिचुएशन में भी जिसे हम सबको मिलकर फेस करना है. कुछ अहम बातें आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूँ. आज हमें सुनना है, समझना है, जानना है, एक दूसरों तक पहुँचना है, एक दूसरे तक ऐसे मैसेजेस कन्वे करना है जिसके ज़रिए हम सब में एक पॉजिटिविटी आए, विचारों की पॉजिटिविटी आए और नए लर्निंग प्रोसेस को समझने का हमारा प्रयास सक्सेस रहे. डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, चलो आज शुरू कर रहा हूँ एक छोटी सी बात, एक छोटी सी सिचुएशन को लेकर. 5 पॉइंट्स के ऊपर आज हम शेयर करेंगे. पहले पॉइंट्स में आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आज की इस कंडीशन में हमारे मेंटल स्टेटस की क्या कंडीशन है. ऑब्वियसली आप इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, मैं क्या फील कर रहा हूँ, हम सबकी फैमिली क्या फील कर रही है, हमारा देश क्या फील कर रहा है. बिफोर आई एम गोइंग टू स्टार्ट, आई जस्ट वॉन्ट टू कनेक्ट ऑल दिस थिंग विद वन स्टोरी. एक स्टोरी हम समझने की कोशिश करते हैं, उसके ज़रिए हमें क्या लर्निंग लेनी है ये हम सब के ऊपर निर्भर है. दोस्तों, एक छोटी सी बात है. स्टोरी शुरू होती है एक टॉकीज से. ये एक फिल्म की टॉकीज. ये टॉकीज में एक नोटिस कन्वे की जाती है कि एक 8 मिनट की शॉर्ट फिल्म जिसे नेशनल अवार्ड मिल चुका है और सभी लोगों को वो फिल्म देखने के लिए आना है,
और ये फिल्म जब वो देखने आते हैं तो ये केवल 8 मिनट की शॉर्ट फिल्म होती है। 8 मिनट की शॉर्ट फिल्म देखने के लिए फ्री ऑफ चार्ज आप सभी को ये फिल्म देखनी होती है। तो शुरू हो जाते हैं, लोग पूरे हॉल में पैक हो जाते हैं, पूरे सिनेमा हॉल में सभी के सभी लोग फिल्म देखने आ जाते हैं। 8 मिनट की ये फिल्म शुरू होती है और फिल्म की बिगनिंग होती है। एक वाइड एंगल होता है और वो वाइड एंगल टच करता है एक सीलिंग को और सीलिंग से कनेक्टेड एक फ़ैन को। पूरा कैमरा उस सीलिंग के ऊपर होता है और उस सीलिंग के नीचे जो फ़ैन घूम रहा होता है उसके ऊपर होता है। लोगों को बहुत सरप्राइज़ होता है। चलो शुरुआत तो हो गई। शुरुआत होने के बाद में 1 मिनट होता है, 2 मिनट होता है, 3 मिनट होता है, 4 मिनट तक पूरा कैमरा उस सीलिंग के ऊपर और साथ साथ में उस फ़ैन के ऊपर। लोग परेशान होना शुरू हो जाता है कि यार 8 मिनट की ये फिल्म है, नेशनल अवार्ड मिल चुका है, पूरा कैमरा केवल फ़ैन और उस सीलिंग के ऊपर है। 6 मिनट हो जाते हैं और फिर लोग इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे वो स्टेप बाय स्टेप वहाँ से निकलने की कोशिश करना शुरू करते हैं। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो कैमरा का जो एंगल होता है ना, वो कैमरे का एंगल नीचे आना शुरू होता है। लोग समझते हैं चलो कुछ तो उस कैमरा में मूवमेंट हो चुकी है और वो कैमरा मूव करता है एक छोटे से बच्चे की तरफ। वो बच्चा जो एक बेड के ऊपर लेटा हुआ होता है, उसको स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम हुआ होता है और पूरी लाइफ उसकी उसी के ऊपर निर्भर है, उस बेड के ऊपर। ना वो खड़ा हो सकता है, ना वो चल सकता है, ना वो घूम सकता है, ना वो खेल सकता है। उसी बेड के ऊपर उसकी पूरी लाइफ होती है, सिर्फ वो ज़िंदा होता है। उसके बाद वो कैमरा उसके एक चेयर पे जाता है। वो चेयर भी उसी तरह होती है जिसकी कोई पीठ नहीं होती है। उस चेयर को भी उसी तरह से दिखाई दिया जाता है और फिर वहाँ से वो कैमरा निकल के आता है फिर से उसी सीलिंग की तरफ, उसी फ़ैन की तरफ, और वहाँ एक नोट आ जाती है, ये बच्चा रेगुलरली उसके लाइफ का पूरा समय इस सीलिंग को, इस फ़ैन को और जो दीवारें होती है उसे देखने में गुजारता है। उसकी पूरी लाइफ वो उसमें गुजारता है और हम केवल 8 मिनट भी पेशेंस नहीं रखते और केवल 8 मिनट भी हम खुद को बैलेंस नहीं रखते और इस इनबैलेंस सिचुएशन में हम इरिटेट हो जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ हैव अ पेशेंस। हमें सबको एक अच्छी हेल्थ मिली है और उस अच्छी हेल्थ को हमें थैंक्सफुल होना है। हमें ब्लेसिंग देना है कि हाँ, हम हेल्दी तो है, हमें उस बच्चे की तरह लाइफ तो जीनी पड़ नहीं रही है। इसका मतलब यही है मेरे दोस्तों, डियर पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, कि हम बहुत बेटर सिचुएशन में हैं। डियर स्टूडेंट, हम बहुत बेटर है। कम से कम हमें उस बच्चे की तरह सिचुएशन में रहना नहीं पड़ रहा है। सो बी थैंक्सफुल टू गॉड। दोस्तों, आज ये स्टोरी सुनाने का मेरा मकसद यही था। आज हमें पेशेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कोविड-19 की इस सिचुएशन में हम सब इस तरह से प्रभावित हो चुके हैं कि क्या करें क्या ना करें, ऐसे अनसर्टन सिचुएशन हम सब के ऊपर है और इस सिचुएशन की वजह से हमारी मेंटल स्टेटस डिस्टर्ब हो सकती है। हमारी फैमिली की जो ओवरऑल दिनचर्या है वो चेंज हो सकती है, देश की दिनचर्या चेंज हो सकती है। लेकिन इस सिचुएशन में एज अ स्टूडेंट, एज अ पेरेंट, हमारा रोल बहुत अहम है और इस अहम रोल में हमें कितना सीरियस होना ज़रूरी है और उतना ही जॉली होना भी। क्यों सीरियस होना? क्योंकि इस सिचुएशन में बहुत बार आपको अब घर में दिक्कत आई होगी। ये अप्रैल, मई, अभी ये जून, ये 3 महीने में हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें एक उपलब्धि भी मिली है। दो हमारे मेंटल स्टेटस अभी डिस्टर्ब है,
ऐसा हमें लगता है, लेकिन डिस्टर्ब होने की प्रोसेस भी हो रही है, लेकिन हमें इसी समय में एक दूसरे को साथ देना है। बच्चों, ये एक समय है जिस समय में हमने सबसे ज़्यादा हमारे फैमिली के साथ में समय बिताया है। बहुत बार काउंसलिंग के दरमियान पापा समय नहीं देते, मम्मी समय नहीं देती, इस तरह के सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है और फिर हम सॉल्यूशंस के ऊपर जोर देना शुरू कर देते हैं। आज की सिचुएशन में पापा भी घर पर है, मम्मी भी घर पर है, बच्चे भी घर पर है, नाना नानी, दादा दादी सभी घर पर है। ये वो समय है जिस समय में हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। मेरे पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है, इस समय में बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब ना हो। इस समय एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। पेरेंट्स को कहना चाहूँगा कि ये वो समय है जब हम हमारे बच्चों का जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो वीकनेस है, वो स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझने की कोशिश और ज़्यादा तरीके से कर सकते हैं। किसी सिचुएशन को आपका बच्चा किस तरह से डील करता है, ये भी समझने की हम कोशिश कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं। इतना ही नहीं, हम हमारे स्टूडेंट्स को, मेरे बच्चों को ये भी कहना चाहूँगा कि अपने मम्मी पापा को समझने की कोशिश करो। कभी कभार किसी बात को लेकर अनबन हो जाती है, घर है तो अनबन होनी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कितने समय तक वो रहे। झट से अगर हमारा व्यक्ति इम्पोर्टेंट है, हमारा पर्सन इम्पोर्टेंट है, तो हमें ध्यान हमारे व्यक्ति के ऊपर देना है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग, ज़्यादा से ज़्यादा केयरिंग हमें हमारे फैमिली के प्रति होना है। इस समय कभी पापा बोलते हैं कि नहीं, अब मुझे बाहर जाना ज़्यादा ज़रूरी है, तो कभी कभी बच्चों ने भी समझ लेना चाहिए, लेकिन हो सके तो घर पर ही रहना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी इरिटेशन हो जाता है कि कब तक, बच्चे भी बोलते हैं कि मम्मी क्या वही टीवी देखूं, क्या यही घर पर मैं रहूं, 1 मिनट के लिए मुझे ग्राउंड पर भी जाने को नहीं मिल रहा है। इसलिए मैंने शुरू में ही वो स्टोरी आपको बताई है। कोई ज़िद मत करो, इस समय को हैंडल करने की कोशिश करो। इस समय एक दूसरे को समझने की, जानने की कोशिश करो। एक दूसरे के प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं वो कोशिश करो। मम्मी को हेल्प करो, पापा को हेल्प करो, और मम्मी पापा को ये भी कहूँगा कि आपको अपने बच्चों को भी हेल्प करना है। इस सिचुएशन में किस तरह से टैकल होना है वो भी हमें एक दूसरे के लिए समझना है। जहाँ हम रिलैक्स हो सकते हैं, घर पर वार्म अप कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रह सकते हैं। हम पहले भी रहते थे, लेकिन ये समय अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ हमें एक दूसरे को समझना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट ऑल। किसी छोटी छोटी सी बात को लेकर गुस्सा हो जाना, बहुत जल्दी एंगर आना, ये पॉसिबल हो सकता है। ऑब्वियसली यार, एंगर नेचुरल फीलिंग है, हो सकता है। जैसे हम हंस सकते हैं वैसे गुस्सा भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कितने देर तक हमें गुस्सा रहना है। समझ जाओ, एक दूसरे के अलावा हम नहीं रह सकते। ये फीलिंग इस लॉकडाउन की सिचुएशन में हमें मिली है, इसलिए एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की मेंटल स्टेटस को समझना हमें ज़्यादा ज़रूरी है। अब बेहतर है हम एक और दूसरा पॉइंट आपसे शेयर करना चाहते हैं। इस सिचुएशन में रोल ऑफ स्कूल और रोल ऑफ टीचर हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अप्रैल महीने से लेकर इस लॉकडाउन की कंडीशन में आपके टीचर, जिनके साथ में आप रेगुलरली कनेक्ट होते थे और होने वाले भी हैं, तुम्हें पता है वो टीचर आप इस ऑनलाइन एजुकेशन के ज़रिए, इस वर्चुअल क्लासरूम के ज़रिए और सोशल मीडिया का पूरा पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करके आप तक सब कुछ पहुंचा रहे हैं जो आपको देना है। आपको पता है आपके टीचर इस वक्त क्या एफर्ट्स कर रहे हैं। आपके टीचर इस वक्त आपके लिए हर वो लेसन प्लान बना रहे हैं, खुद के वीडियोज़ खुद बना रहे हैं, खुद एडिटिंग कर रहे हैं, खुद डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं, खुद कंसेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। ये जो टेक्निकली वर्क है ना, ये उनके रोल में पूरी तरह से नहीं था। हर एक व्यक्ति टेक्निकली साउंड नहीं होता, लेकिन वो ये कोशिश कर रहे हैं। दिन भर आप तक वो किस तरह से पहुँचे, इस तरह की उनकी कोशिश होती है। ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए वो हर एक कंटेंट को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और पढ़ने के बाद में खुद अपने मोबाइल के ज़रिए, कैमरा के ज़रिए वो शूट कर रहे हैं।
सुबह से लेकर शाम तक, इवन कभी कभी रात तक वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, इनके ये एफ़र्ट्स बहुत लाजमी हैं। पेरेंट्स को भी ये बताना चाहूँगा और स्टूडेंट्स को भी कि हमारे टीचर्स को सैल्यूट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि सभी लोग टेक्निकली साउंड नहीं होते। वो खुद उन सब टेक्निकल बैकग्राउंड से रूबरू हो रहे हैं, वो कनेक्ट हो रहे हैं। उन्होंने खुद पहले इसे सीखा, समझा और अपने एफ़र्ट्स के ज़रिए वो आप तक हर एक कोशिश कर रहे हैं। मेरा कहना यही है कि यहाँ हमारे टीचर्स का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो रेगुलरली आप तक टीचिंग का हर एक अप्रोच देने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब पहले वो खुद सीख रहे हैं, ऑब्वियसली आपको वो हर एक कंटेंट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हर एक लर्निंग कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके ज़रिए आप तक आपका सिलेबस भी पहुँचे और लाइफ की एक अच्छी लर्निंग प्रोसेस भी रहे। दोस्तों, CBE जो CBSE ने कहा है और कंप्यूटेंसी बेस एजुकेशन देने को CBSE ने कहा है। इस वक्त CBSE ने भी अपना रोल चेंज कर दिया है। इस पेंडेमिक की सिचुएशन में किस तरह की हमारी भूमिका होती है, इस भूमिका को स्कूल बखूबी निभाने की कोशिश कर रहा है। स्कूल पूरे एफर्ट्स ले रहा है आप तक वो हर एक कंटेंट पहुँचे। ये कब तक होगा? जून में ख़त्म होगा, जुलाई में ख़त्म होगा, अगस्त में, पता नहीं। इसके बारे में हमें अभी कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन लर्निंग की ये प्रोसेस, टीचिंग की ये प्रोसेस आप तक पहुंचाने के लिए हमारी स्कूल, आपकी प्रभात आपके लिए बहुत से एफर्ट्स ले रही है। इस पूरी सिचुएशन में वो दिन रात जाकर आप तक वीडियो बना रहे हैं और आप तक वो उसे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी तरह हम सब टेक्निकली साउंड नहीं होते, ये तो लर्निंग प्रोसेस है। एक आध बार गलतियां हम सबसे हो जाती है, गलतियां तो होनी है। जो कोशिश करता है उसके ज़रिए कभी कोई वीडियो ब्लर आ सकता है, कभी साउंड क्लियर आ नहीं सकता। इसका मतलब वो पूरी तरह गलत है ऐसा भी नहीं होता है। इसलिए इस सिचुएशन में आपको, हम सब टीचर को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और इस सिचुएशन में ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब वो उनके एफर्ट्स पूरी तरह से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। माय डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, अभी टीचर्स के रोल के बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरह से टीचर और स्कूल पूरी तरह आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है और टीचिंग लर्निंग की ये प्रोसेस सक्सेसफुल करने की एक अनोखा एफर्ट्स लेने की कोशिश कर रही है। इस समय में थर्ड पॉइंट्स आपसे शेयर करना मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगता है। वो ये है कि इस समय में एज अ पेरेंट्स आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए, एज अ स्टूडेंट्स हमारे स्टूडेंट की क्या भूमिका होनी चाहिए। अब हम ये कह सकते हैं कि CBSE और एजुकेशनल फिलॉसफी क्या कहती है। एजुकेशनल फिलॉसफी कहती है कि टीचिंग इज़ एन एक्टिविटी एंड लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। आज हमें सही समय पर सेल्फ लर्निंग के ऊपर भी गौर करना होगा। पहले स्टूडेंट की भूमिका हम समझने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई वीडियो या जब भी कोई कंटेंट आपके सामने आता है तो उसे समझने की कोशिश करो। ऑब्वियसली सेल्फ लर्निंग के इस मोड में हमें ये ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि कोई कंसेप्ट आज हमें लर्निंग के लिए आती है तो पहले हम उसे सेल्फ एनालाइज करते हैं, उस कंसेप्ट को खुद को समझने की कोशिश करते हैं। ऑनलाइन का वीडियो आने के बाद में उसी समय में क्वेश्चन आंसर्स का डील नहीं है। उस समय में हमें क्या लगता है ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए कोई भी कंटेंट जब आता है तो बच्चों ने सेल्फ लर्निंग के ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहिए। वो समझने के बाद मुझे कितना समझा है वो जानने की कोशिश करनी चाहिए। सेल्फ लर्निंग के इस दौर में हमें खुद को इस तरह से स्टेबल करना है कि हाँ, आई हैव टू डू इट, मुझे ये समझने की कोशिश करनी है। कंसेप्ट किस तरह से पहले क्लियर होती है इसके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना है। जब तक हम कंसेप्ट के ऊपर जोर नहीं देंगे तब तक हमारा कोई भी कंटेंट फुलफिल नहीं होगा। ये माइंड से निकाल लो, कोई भी टीचर केवल सिलेबस करने के लिए आपको सिखा नहीं रही है। इट इज़ वेरी क्लियर। हम कोई भी ये एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं कि अभी सिलेबस कंप्लीट करना है, पढ़ा दो ना। टीचर्स भी इसके ऊपर लर्निंग कर रही है और इसीलिए एज अ स्टूडेंट हमारा रोल होता है सेल्फ लर्निंग का, सेल्फ मोटिवेशन का। एज अ स्टूडेंट वो कंसेप्ट समझो,
उसे जानने की कोशिश करो, उसे एनालाइज करो, उसको पॉइंट वाइज लिखो, उसके पॉइंट्स खुद कवर करो, और जितने पॉइंट्स कवर करोगे वो पॉइंट्स रिवाइज करने की कोशिश करो। जब तक वो खुद के साथ आप वो स्टेप को कनेक्ट नहीं कर पाते, जब तक फाइनल आंसर के ऊपर नहीं पहुंचते, तब तक हम उसे समझाने की और समझने की कोशिश नहीं कर पाते। इसलिए पहले पूरे फोकस से उसे समझने की कोशिश करना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब टीचर कोई लेसन आपको भेजती है वीडियोस के ज़रिए या कोई पीडीएफ आपके सामने आता है, तो पेरेंट्स का रोल क्या होता है? उस वीडियो को अच्छी तरह से डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद में उसे समझने के लिए आपके वार्ड को मदद करें। अब वो मदद किस तरह से होती है? बच्चों केवल एग्ज़ाम पास करना या वो सिलेबस कंप्लीट करना या किसी क्वेश्चंस के आंसर देना, दैट इज़ नॉट मेजर इम्पोर्टेंट एट ऑल। उसको अहमियत है, लेकिन उसके साथ में हमारे टीचर्स लर्निंग आउटकम्स, जो सीबीएसई ने कहा है कि हर लेसन के साथ लर्निंग आउटकम जुड़ा हुआ है, अध्ययन निष्पत्ति जिसे कहते हैं। वो निष्पत्ति क्या होती है? ये बहुत हार्ड और कठिन शब्द है। पेरेंट्स कुछ हद तक समझ जाएंगे, बच्चे हर वक्त उसे समझेंगे, इट्स नॉट नेसेसरी। इसलिए लर्निंग आउटकम्स क्या होता है, अध्ययन निष्पत्ति क्या होती है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। हर टीचर हर कंटेंट के ऊपर, हर लेसन के बारे में, लर्निंग आउटकम के बारे में लिख रही है या बता रही है। उसका मतलब ये होता है कि कोई लेसन अगर होता है तो उस लेसन को ख़त्म होने के बाद में उसमें क्या अध्ययन निष्पत्ति होती है, इसका मतलब हम उसे, उसमें से हम क्या पाते हैं, उसमें से हमें क्या मिलता है, वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो हम समझने की कोशिश करते हैं तो उसको हम हमारे लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब एक फॉर एग्जाम्पल आपको देने की कोशिश करता हूँ। पेरेंट्स आप भी समझने की कोशिश करिए और बच्चों आप भी। अब हमें 9th और 10th में डेमोक्रेसी के ऊपर एक लेसन है। देखो लर्निंग आउटकम हम किस तरह से कनेक्ट करते हैं। डेमोक्रेसी का ये लेसन, व्हाट इज मीन बाय डेमोक्रेसी, इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी, मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, ऐसे बहुत से सवाल उसमें पूछे गए हैं। सिग्निफिकेंस के बारे में पूछा गया है। तो हम डेमोक्रेसी का वो लेसन पढ़ लेते हैं और डेमोक्रेसी का वो लेसन होने के बाद में एग्ज़ाम या कोई क्वेश्चंस उसके ऊपर पूछे जाते हैं तो हम उसके आंसर्स दे देते हैं और आउट ऑफ मार्क्स भी हमें मिलते हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर पेरेंट्स, यहाँ लर्निंग आउटकम्स क्या होगा? केवल एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना, ये हमारा लर्निंग आउटकम है? या फिर डेमोक्रेसी के उस लेसन को हमारे डे टू डे लाइफ से हम किस तरह से कनेक्ट करते हैं, ये होगा। डेमोक्रेसी के इस लेसन में क्या पेरेंट्स बच्चों के साथ में डेमोक्रेटिक एटीट्यूड रखते हैं? देखो, आई एम गोइंग टू कनेक्ट द चैप्टर ऑफ डेमोक्रेसी विद स्टूडेंट्स। क्या पेरेंट्स डेमोक्रेटिक एटीट्यूड अपने फैमिली में रखते हैं? क्या मम्मी पापा बच्चों को डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस में लाते हैं? क्या इस डेमोक्रेसी के सब अप्रोच में बच्चों को कुछ पूछा जाता है, उनकी राय ली जाती है किसी मुद्दों के ऊपर, किसी पॉइंट्स के ऊपर, या फैमिली के कोई प्रॉब्लम्स के ऊपर क्या बच्चों की राय ली जाती है? सच में ये डेमोक्रेसी है, ये है लर्निंग आउटकम्स। अगर हम इस तरह से हमारे फैमिली में उनका रोल समझने की कोशिश करते हैं तो ये रियल डेमोक्रेसी है। क्या बच्चों के इन सब प्रोसेस में क्या बच्चे मम्मी पापा की राय लेते हैं या नहीं, मनमानी मैं जो कहूँगा वही सही है, क्या इस तरह का बिहेव करते हैं? क्या सच में डेमोक्रेटिक एटीट्यूड हम सब रखते हैं? ये समझने की कोशिश करते हैं। भाई डेमोक्रेटिक अप्रोच के बारे में और लर्निंग आउटकम के बारे में आपको ये भी जोड़ना चाहूँगा कि उसमें देखो लर्निंग कितनी अच्छी तरह से और फ्लेक्सिबल है। आज की सिचुएशन में देखो लर्निंग प्रोसेस आज के डे टू डे लाइफ में और किस तरह से कनेक्ट होती है। इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री। आज इस डेमोक्रेटिक एरिया में देखो आपको एक बहुत करंट एग्जाम्पल मिल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों भी कोविड-19 के इस प्रकोप को से जूझ रहे हैं और उसमें सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट खुद अपनी कुछ पॉलिसीज़ बना रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ है, लोकल पॉलिसीज़ है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इनके ज़रिए,
देखो ना, इन सब का कोऑर्डिनेशन है, ये भी एक लर्निंग प्रोसेस है। क्या इस लर्निंग प्रोसेस में हम डेमोक्रेसी से उसे कनेक्ट कर रहे हैं? अगर सब जगह ये कह रहे हैं कि स्टे एट होम, क्या सच में डेमोक्रेसी के इस नियमों का हम पालन कर रहे हैं कि स्टे होम सच में हम घर पर रह रहे हैं? इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं? सरकार जो कुछ उपलब्धियां दे रही है, क्या वो सही में प्रॉपर है? वो सुविधाएं अच्छी है या नहीं है, या किस तरह से होनी चाहिए? इसके ऊपर हम फैमिली के साथ में डिस्कशन कर सकते हैं। ये डेमोक्रेटिक का ये चैप्टर हम आज की सिचुएशन में इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। दैट इज़ लर्निंग आउटकम। इसलिए हर लेसन में हमें कहीं ना कहीं लर्निंग आउटकम मिलेगा, और वो लर्निंग आउटकम हमें समझना ज़्यादा ज़रूरी है। केवल एग्ज़ाम पास करने के लिए हमें स्टडी नहीं करनी है, हमें समझना है कि इस लेसन का, इस चैप्टर का हमारे लाइफ लॉन्ग प्रोसेस में किस तरह से यूटिलाइजेशन हो सकता है। डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि 4th, 5th, 6th एंड 7th स्टैंडर्ड इनके लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। देखो, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अभी हम ऑनलाइन क्लासेस की प्रोसेस में हैं, फिर भी NCF दैट इज़ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो है, उन्होंने हर स्तर के ऑब्जेक्टिव्स डिज़ाइन किए हैं। मतलब 1st, 2nd, 3rd के ऑब्जेक्टिव अलग है, 4 to 7 के ऑब्जेक्टिव्स अलग है, 9, 10th के ऑब्जेक्टिव अलग है। हर ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर एजुकेशन बेस होता है। ऑब्वियसली हमें ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी हमारा वार्ड 4th स्टैंडर्ड में है, 5th में है, 6th में है, 7th में है, लेकिन वो क्यों पढ़ रहा है। केवल एग्ज़ाम पास करना ये हमारा मोटिव नहीं है, लेकिन साथ साथ में NCF की गाइडलाइन के अनुसार अभी 4 to 7 स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव में सबसे मेजर फोकस होता है बच्चे के लर्निंग प्रोसेस के साथ में उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, साथ साथ में इमोशनल डेवलपमेंट, उसके साथ मेंटल डेवलपमेंट, ये सब सोशल डेवलपमेंट, ये सब उसमें इंक्लूड होता है। इसलिए कोई भी लर्निंग आउटकम्स जो होता है हर लेसन का, वो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स को लेकर ज़रूर होता है। अब हम एक बात करते हैं कि अभी 4 to 7 के लिए बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है, सो टेंशन लेने की वैसे ज़रूरत नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि असेसमेंट होने वाली नहीं है, वो होगी, लेकिन स्कूल को वो ऑटोनॉमी दी गई होती है, वो फ्रीडम दिया होता है कि एग्ज़ाम का स्तर किस तरह से हो, या तरीका क्या हो, या असेसमेंट किस तरह की हो। तो अभी आपको एग्ज़ाम कब होगी, क्या नहीं होगी, पोर्टफोलियो क्या होगा, इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको सोचना ये है कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो लर्निंग ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए ले रहे हैं, उसके प्रॉपर मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, ओवरऑल 4 to 7 तक एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं। इन ऑब्जेक्टिव में हमें इन सभी बैकग्राउंड को कॉन्सेंट्रेट करना है, फोकस करना है। इसलिए हमारी मेंटल एबिलिटी डेवलप करने की कोशिश हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कोशिश हो, सोशल एबिलिटी डेवलप होने की कोशिश हो, इसके ऊपर हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा, और यही NCF कहता है। अब एक एग्जांपल के तौर पे आपको बोलता हूँ कि 5th स्टैंडर्ड के बाद में जब स्टूडेंट 6th स्टैंडर्ड में आता है, तो सोशल साइंस सब्जेक्ट उसके लिए बहुत नया होता है, और ये सोशल साइंस सब्जेक्ट हमें बहुत अलग तरीके से अलग ऑब्जेक्टिव्स को लेकर सीखने और सिखाने की कोशिश करता है। अब वैसे वो बड़ी बड़ी किताबें देख के हमें डर लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें डरना है। हमें SST के ऑब्जेक्टिव्स भी समझना है, और ये ऑब्जेक्टिव समझते वक्त हमें एक ही ध्यान में रखना है कि हमें एज अ राइट पर्सन कहाँ और किस तरह से होना है। जैसे एक टॉपिक है 6th स्टैंडर्ड में, यूनिवर्सल डाइवर्सिटी। अब यूनिवर्सल डाइवर्सिटी का ये टॉपिक अगर हमें समझना है तो उसके प्लस पॉइंट्स क्या है, क्या वो शाप है या वरदान है, क्या उसके मेरिट्स है, क्या वो बेनिफिट वाली है। तो हमें ये समझना है कि उससे हम क्या सीखते हैं, हमारी लर्निंग प्रोसेस क्या होती है। यूनिवर्सिटी और डाइवर्सिटी जैसा, यूनिवर्सल डाइवर्सिटी जैसा ये टॉपिक हमें समझने के लिए हमारे भारत में किस तरह से डाइवर्सिटी है वो समझना ज़रूरी है। साथ साथ में अलग अलग विभिन्न प्रांतों में, अलग अलग राज्यों में किस तरह से डाइवर्सिटी है, खान पान क्या है, पोशाक क्या है, ये समझना ज़रूरी है। देखो, वो हमारे लिए वरदान ही है,
और इसको हम लाइफ से कैसे कनेक्ट करते हैं ये हम समझने की और सोचने की कोशिश करते हैं। अगर डाइवर्सिटी है, जैसे एक बाग है, उस बाग में विभिन्न प्रकार के फूल है, किसी का कलर अलग है, किस फ्लावर को एक अच्छा सुगंध है, इसका मतलब हर एक के फ्लेवर अलग है। ये फ्लेवर है इसलिए वो बाग, वो गार्डन अच्छी तरह से फ्लोरिश हो चुका है। इसका मतलब डाइवर्सिटी है इसलिए वो गार्डन बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा है। हमें डे टू डे लाइफ से कनेक्ट कैसे करना है? हमारे घर में मम्मी है, पापा है, आप खुद हो, नाना नानी है, दादा दादी है, ये सब है। हर एक के एटीट्यूड, हर एक के अप्रोचेस, हर एक की स्किल अलग अलग है। हमें यही डाइवर्सिटी पे कंसंट्रेट करना है। हर एक की अपनी अपनी एक खूबी होती है, उस खूबी को समझना है, हर एक के स्किल को समझना है, हर एक के अप्रोच को जानना है, और फिर एक दूसरे को समझकर, एक दूसरे के स्वभाव जानकर हमें लर्निंग प्रोसेस करनी है। ये हमें डाइवर्सिटी से सीखना है। जैसे सिविक्स का एक हाथ कंटेंट हो, जैसे राइट एंड ड्यूटी जैसा सब्जेक्ट हो। अब इस कोविड-19 की पीरियड में जिसे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो उस प्रॉब्लम को मेडिकल हेल्प देने में ये हमारा मूलभूत अधिकार है, ये हमारा अधिकार है, हमें अच्छी हेल्थ मिले, ये अधिकार है। लेकिन अगर सरकार इस तरह की कोशिश कर रही है, और वो उन्हें करना ही चाहिए क्योंकि वो हमारा अधिकार है, लेकिन इस अधिकारों के साथ में हमें एक बात भी समझना है कि अगर वो कह रही है, अगर सरकार की तरफ से निर्देश आ रहा है कि बाहर मत निकलो, स्टे एट होम, तो ये हमारी ड्यूटी है। अगर राइट एंड ड्यूटी का अगर चैप्टर हो तो हमें डे टू डे लाइफ से उसे कनेक्ट करना ज़रूरी है। ये ज़्यादा अहमियत रखता है। और एक एग्जांपल देता हूँ कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड का चैप्टर है। कोई बहुत से पेरेंट्स जब पीटीएम में आते हैं तो वो टीचर के सामने बात करते हैं, बच्चा भी वही खड़ा होता है, और कभी कभार सब्जेक्ट निकलता है कि यार ये बाकी सब्जेक्ट में ठीक ठाक है लेकिन एसएसटी में बहुत पुअर है, ये कुछ करता ही नहीं है, एसएसटी में इसके मार्क्स बहुत कम हैं, लेकिन ये स्वभाव से बहुत अच्छा है। इवन नेबर्स भी उसके बारे में बहुत तारीफ़ करते कि ये सबकी मदद करता है, सबको अच्छी तरह से मिलजुल के सबके साथ में रहता है, सबके साथ अच्छी तरह से बात करता है। दोस्तों, ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड के चैप्टर में अगर थोड़े बहुत मार्क कम आ गए तो चलेगा, लेकिन पेरेंट्स अगर ये बोलते हैं कि उसका स्वभाव अच्छा है, सबके साथ घुल मिल कर रहता है, सबको मदद करता है, इसका मतलब ही इज़ अ गुड सिटीज़न एट ऑल। हमें ये सीखना है, हमें ये समझना है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड मार्क्स उस कंटेंट में, उसके ऊपर एक आधी वर्कशीट आ गई और उस वर्कशीट में अच्छे मार्क्स मिल गए, लेकिन एक्चुअल में उसका नेचर वैसा नहीं है, तो उस यूनिवर्सल ब्रदरहुड के मार्क्स को कोई अहमियत नहीं है। सच्ची अहमियत है कि वो उसी तरह से रहता है या नहीं, उसका एटीट्यूड, उसका अप्रोच हमें समझना ज़्यादा ज़रूरी है। इसी का मतलब ये है कि आज की तारीख में हमें एग्ज़ाम, मार्क्स, इन सब बातों से थोड़ा बाजू हटना है। वो होगा, वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे बेटर ये है कि आज हम किस तरह से बिहेवियरल अप्रोच रखते हैं, किस तरह से हम खुद को बेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं, एज गुड ह्यूमन बीइंग हम अच्छे रहने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 4th, 5th, 6th और 7th स्टैंडर्ड के बच्चों को एग्ज़ाम के बारे में अभी टेंशन नहीं लेना है, लेकिन जो कंटेंट आपकी टीचर आपको भेज रही है उसमें हम क्या सीख रहे हैं, इन बेसिक ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर हमें ध्यान देना है। और मैं पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी उन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। यही इस वक्त इस ऑब्जेक्टिव के बारे में मुझे आपसे कहना है। डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, एक लास्ट पॉइंट आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ। एक ट्रायंगल है, एक जगह हमारे स्टूडेंट्स है, एक जगह हमारे पेरेंट्स है, और थर्ड पॉइंट के ऊपर स्कूल है। हम तीनों का कोऑर्डिनेशन, हम तीनों का कोऑपरेशन और हम तीनों की कनेक्टिविटी इन सब प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन बनने वाली है। हम तीनों फैक्टर्स को एक दूसरे से कनेक्ट होना, एक दूसरे के प्रॉब्लम समझना ज़रूरी है। स्कूल की ये भूमिका है, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेशन से ही रहना होगा, कोऑपरेशन से ही रहना होगा। स्कूल बंद नहीं होगी, स्कूल चलेगी, स्टूडेंट्स तक लर्निंग टीचिंग की प्रोसेस होती रहेगी। ऑब्वियसली इस सिचुएशन में पेरेंट्स के बहुत से फाइनेंशियल क्राइसिस, बहुत से फाइनेंशियल प्रॉब्लम हैं, स्कूल इसको समझती है। स्कूल ये जानती है कि इस सिचुएशन में फिनेंशियल प्रॉब्लम ज़रूर है और इस फिनेंशियल प्रॉब्लम में सॉल्यूशन ज़रूर निकलेंगे, इसलिए स्कूल भी आपको उस तरह से मदद कर सकती है। आपको कोई भी दिक्कत हो स्कूल फीस के बारे में
या फिर फिनेंशियल प्रॉब्लम से रिलेटेड स्कूल से कनेक्ट होने की कोशिश करो। उसे किस तरह से सेगमेंट में हम डाल सकते हैं वो देने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ में स्कूल पेरेंट्स की ये प्रॉब्लम समझती है, इसलिए यहाँ कोई फोर्स नहीं होगा, रिक्वेस्ट ज़रूर होगी, क्योंकि हमें दोनों एंगल से सोचना होगा। क्योंकि स्कूल भी अब जिस दौर से गुजर रही है, स्कूल भी उस तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है, लेकिन इस समय में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना, एक दूसरे को कोऑपरेट करना, वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए एक दूसरे की प्रॉब्लम समझना ही, इसमें ही हम सबको एक अच्छा तालमेल बिठाना है और यही समझने की हमको कोशिश करनी है। जब तक हम एक दूसरे के साथ इस तरह से कनेक्ट नहीं होंगे, इसलिए 3 C को हमें ध्यान देना है, एक कोऑर्डिनेशन, एक कोऑपरेशन और थर्ड कनेक्टिविटी। ये तीनों बातें हमें गौर करना ही करना है। डियर स्टूडेंट्स, अभी स्कूल का क्या रोल, स्टूडेंट्स का क्या रोल और पेरेंट्स का क्या रोल, इसके बारे में हमने समझने की कोशिश की है। इसी तरह से हम सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहेंगे। ऑनलाइन की दिक्कतें आएगी, इसका मतलब ये नहीं कि हमें हारना है। हम सबको हाथ में हाथ डालकर एक दूसरे की मदद करनी है और हमें ही इस प्रॉब्लम के ऊपर सोल्यूशन निकालना है। चलो कंक्लूड में आप सभी से एक और लाइफ स्किल की बात कह देता हूँ कि देखो, इस सिचुएशन में आपको एक सोल्यूशन देता हूँ। पापा मम्मी आप भी समझ लीजिए और आपको भी बताने की कोशिश करता हूँ। पूरे महीने में एक आध बार अगर समय भी मिले ना, तो बच्चों के साथ में फिल्म ज़रूर देखें। आप बोलेंगे सर क्या स्टडी और फिल्म का कॉम्बिनेशन? नहीं, मैं ऐसी फिल्म आपको सजेस्ट करूँगा जो सर्वाइवल मूवीज़ है, 90 मिनट्स की है। जब भी समय मिले तब महीने में एक आध बार एक आधी फिल्म भी देख लिए तो भी चलेगा। कास्ट अवे एक अच्छी फिल्म है जिसे आप देख सकते हो। लाइफ ऑफ पाई जो एक अच्छी सर्वाइवल मूवी है जिसे ऑस्कर भी मिल चुका है, वो आप फिल्म देख सकते हो। बरीड एक अच्छी मूवी है जो एक अच्छी सर्वाइवल मूवी है। आवर 127 एक अच्छी मूवी है, वो भी आप देख सकते हो। इस सिचुएशन में मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ रिलैक्स होने के लिए। फिल्में एक अच्छा माध्यम है। अलग अलग स्टेज शो घर में ही आप कर सकते हो। पापा मम्मी मिलके गाना गा सकते हैं यार। बच्चों के साथ में घुल मिल जाओ, समझने की कोशिश करो। आर्ट एंड कल्चर जे प्रभात ले रहा है। बीच में हमने अप्रैल के फेज़ में लाइफ स्किल की एक्टिविटीज़ ली थी। बच्चों ने बहुत अच्छी की तरीके से मम्मी पापा को मदद की है, घर में काम किए हैं। ये केवल एक्टिविटी न रहे, ये कंटिन्यू रहना ज़रूरी है। इसलिए फिल्में भी देखें, अलग अलग स्टेज शोज़, घर में स्टेज बनाकर स्टेज शोज़ कीजिए, गाना गाइए, खुद का एक घर पर एक स्टेज बनाइए, मम्मी से गाने की रिक्वेस्ट कीजिए, पापा को कहो, कभी कभार डांस भी कर लो, एंजॉय भी करो। इस सिचुएशन में रिलैक्स रहने की कोशिश करो। सभी लोग, नाना नानी दादा दादी जो स्टोरीज़ सुनाते हैं उनको कहो स्टेज के ऊपर आकर स्टोरीज़ सुनाओ, और इस तरह से वो घर में इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करो कि बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। घर में स्टडी भी होगी, स्टडी से रिलेटेड अलग अलग विषय के ऊपर चर्चा भी होगी, सॉल्यूशंस भी निकलेंगे। क्योंकि हम वो लोग हैं वो ये जानते हैं कि सूरज से ढलना नहीं, उठा न सीखो। सूरज से ढलना नहीं, उठा न सीखो। दीप से जलना नहीं, मुस्कान सीखो। सूरज से ढलना नहीं, उठा न सीखो। दीप से जलना नहीं, मुस्कान सीखो। कर लो अंकित मन में ये बात, कर लो अंकित अपने मन में ये बात। राह पर सिर्फ चलना नहीं, राह निर्माण सीखो, राह निर्माण सीखो। यस, हमें अपनी खुद की राह बनानी है। ऑनरेबल डायरेक्टर सर, डायरेक्टर मैम, एकेडमिक डायरेक्टर मैम, प्रिंसिपल मैम, सभी लोग अपनी अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं। आज आप तक इसी के ज़रिए हम वो मैसेज देना चाहते हैं कि हम सब आपके साथ हैं, स्कूल आपके साथ है। बी कनेक्टेड।